थैंक यू सो मच पास्टर जी। परमेश्वर का शुक्र करते हैं जी, परमेश्वर की तारीफ करते हैं क्योंकि वो तारीफ के योग परमेश्वर है। आए हुए सारे भैन भरावां नूं परमेश्वर दे विच जय मसीह की। तुसीं सोच रहे होने हो पास्टर नीतू ने अज ऐनकां कानूं लाइयां होईयां, वो मैं बाद चों दसांगी, पर मैं पहली रीजन नहीं दसांगी, पहली रीजन बाद चों, पर दूसरी रीजन पहला दसांगी। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਣ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੇਡਸ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਫਰਡ ਚਰਚ ਮਾਨਕੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਾਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਪੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਲਯ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਐਡਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਕਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਐਮਪਲੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੱਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਬੁਰਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਮਪਲੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਬਰਸਾਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਐਮਪਲੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨੱਠਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪਲੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੂਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲਕ ਝਪਕੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू, हाथ मेरा सदा थामे रखे नेगबान है तू। जी मेरे खुदावंद आज मेरी दुआ है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ, ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਲਾਤੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੇ स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है ਅਤੇ ਇसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। यानी ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਤਵ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕੜਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अपने पड़ोसी को कहें, क्या क्या है आज? आजादी है। आजादी कब आती है? जब परमेश्वर का आत्मा आता है। ठीक है जी, हुण जरा ध्यान नाल इस सर्कल नूं समझण दी कोशिश करो। परमेश्वर दा आत्मा उतरेगा ते आजादी आएगी, पर परमेश्वर दा आत्मा कदों उतरेगा? जदों परमेश्वर दे लोग उसदी उस्तत करनगे। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ टाइट ਸੀਗੇ कि वो हिल नहीं सकते सी। आज अगर मैं आपको बोलूं कि अपने हाथ पकड़ के देखें और उसको टाइटली पकड़े तो आप अपने हाथ को हिला नहीं सकेंगे। करके देखना जरा, एक हाथ दे नाल दूजी कलाई फड़ना, पकड़ के देखो जरा, टाइट नाल फड़नी, वो नहीं हौली जी जिद्दां मर्जी घुमाई जाइए, टाइट से पकड़े। इन्नी टाइट सीगी उन्हां दी बेड़ियां, सिर्फ हत्थां 'च नहीं सी टाइट, पैरां 'च भी सीगियां टाइट। ते उन्होंने की करना शुरू किया? उन्होंने अपने हालातों तो नजर नूं हटाया, उन्होंने परमेश्वर की उस्तत करनी शुरू की। परमेश्वर की उस्तत करते हुए परमेश्वर के आत्मा नूं इनवाइट किया। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा उतरिया, उत्थे स्वतंत्रता, उत्थे आजादी हो गई। ते ए ना वेट करया करो कि हालात सही होणगे ते उस्तत करांगा, हालात खराब है ते होर भी धन्यवाद ते उस्तत करो, क्योंकि हुण हालात बदलण वाले ने। ओ rejoice in the time when you're going through the hardships of life. जब तुसी अपनी जिंदगी दे मायूसियत दे नाल भरे हुए फेस चों निकलदे हो ना, उस टाइम होर भी नच नच के टप टप के परमेश्वर दा शुक्र मनाना सीखो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੋਗੇ ਡਾਊਨ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵਕਨ
ਲਾਇਨ ਵਕਨ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ नहीं हैगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ प्रशंसा ਨੂੰ, जब आप दूसरों की एप्रिसिएशन को ढूंढते हैं तो आप समझ जाए कि आप भरमाने वाले जाल में फंस रहे हैं। कई बारी तुसीं देखिया होना मम्मियां तैयार होके आ जांदियां ते बच्चियां नूं कहिंदियां हाँ भी मैं किदां दी लगदी हां। हसबैंड नूं पुछीदा हाँ भी ये कलर ठीक लगदा, हाँ भी दसना जरा किदां दा लगदा सूट नवां सवाया। ओ भावें हसबैंड कुछ भी ना कहंदा होवे, बार बार पुछीदा मैं ठीक लग रही हां। क्यों? क्योंकि साडे अंदर एक लालसा होंदी है कि सानू लोकी साडी प्रशंसा करन, सानू लोकी उस्तत दे नाल देखण। पर परमेश्वर दा वचन कहंदा है जो भी काम तू करदा ए भाल के ना कर के तू परमेश्वर दे लई नहीं लोकां लई करदा, ए सोच के कर के लोकां लई नहीं परमेश्वर लई करदा। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो, उसके 6ठे चैप्टर की पहली आयत में पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की तरह नहीं, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करने के जो क्या करते वो चौराहियां ते खड़े हो के उच्ची उच्ची दुआवां करते, उच्ची उच्ची अरदासां करते, लंबियां लंबियां प्रार्थनावां करते। हाँ भी देखदा मैनू कोई कह रहा मैं बहुत वधिया प्रार्थना करदा, कोई देख रहा मैं इन्ने दिन रोजे रखदी हां, कोई देख रहा मैं इन्नी प्रार्थना दे विच टाइम लगानी हां। कोई नहीं देखना चाहता जी, वो तुहाडा ते परमेश्वर दा रिश्ता है। इस करके जेकर तुसीं चाहते हो कि लोकी देखण, तुसीं ऑलरेडी डिसीव हो चुके हो। हालेलुया। इस करके लोकां दी गल्लां नूं, लोकां दे बारे च, लोकां दी प्रशंसा नूं लभण दी कोशिश ना करो। जे तुसीं लभण दी कोशिश कर रहे हो तुसीं ऑलरेडी जाल दे विच फसे होए हो। समझ आ रही है जी? अज बड़े लोकां दे अंध विश्वास टुटन जा रहे हैं। हालेलुया। बाद चों यह ना कहना हाँ जी पास्टर नीतू आए सी उन्होंने कहता हुण नहीं मैं किसी नूं कहना मैं किदां दी लगदी। दूसरी चीज, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपना अंकलन परमेश्वर तो हटा के जो तुसी लोकां दे नाल करदे हो, तुसी ऑलरेडी उस जाल दे विच फस चुके हो जिहड़ा प्रभु वालों नहीं है। अंत के दिनों दे विच शैतान कोई इदां नहीं कि वो शैतान बन के आएगा। वचन दसदा है वो स्वर्गदूत बन के, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के तुहाडे सामने आएगा। देख के तुसी कहोगे हाँ जी ये पता भी नहीं लगता, ये तो स्वर्गदूत ही है। देखण च नहीं पता लगेगा पर उहदे कम्मां तो तुसी जान जाओगे कि वो स्वर्गदूत नहीं है, वो शैतान है। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ जन होएगा वो लोकां तो कोई भी तरह की उस्तत नूं डिजर्व भावें करदा होवे कि ना करदा होवे नहीं मंगेगा। वचन दसदा है जे तुहाडी कोई उस्तत करे ते करे, अपने मूंहों अपनी वधियाई ना कर। जे कोई तेरे बारे च वधिया कवे ते कवे, होर अपने बारे च अपनियां ना ठींगा मारी जा।
तो पहली ये बात है। और दूसरी ये बात है, जब आप दिखावे के लिए कोई बात करते हैं, जब आप किसी को कंपेयर करके बात करते हैं, तो आप ऑलरेडी उस जाल में फंस चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं, संत लूका दी अंजील ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਰਕੁਸ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੇ 8th ਚੈਪਟਰ 8 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੂਜ਼ ਹੂਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ VIP ਬੰਦਾ ਵਾਂ, प्रभु मेरे वाल देखो। अपनी जब वो सारी बढ़ाई कर चुका होता है तो उसके बाद वो किसको देखता है? वो चुंगी लेने वाले को देखता है। उधरले पासे ਜਿਹੜਾ बैठा ਹੁੰਦਾ टैक्स कलेक्टर, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਿਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आज आप अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने ओहदे को ऊंचा करना चाहते हैं, तो लोगों के साथ कंपेयर करना बंद करें, अपने आप को छोटा कर दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के जोरावर हाथ के नीचे अपने आप को छोटा करता है, दीन करता है, परमेश्वर सही समय पर उसे ऊंचा करते हैं। हालेलुया। आपको लोगों की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। नहीं पास्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं गुड ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬੌਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਕੋ ਜਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ मैं किसी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तीसरा, भरमाने योग्य बड़ा हथियार जो शैतान का चलता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, और ये आजकल बहुत मजबूत है जी, कि वो झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर देता है। ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। तो जब कोई परमेश्वर की महिमा की बात नहीं करता, एक गल हमेशा याद रखना, कोई भी बंदा जो थानू कुछ कह रहा है, तुहाडे उत्ते भविष्यवाणी कर रहा है, तुहाडी लाइफ दे कुछ बोल रहा है, थानू कुछ दस रहा है, उहदे नाल तुहाडी लाइफ दे विच परमेश्वर दे विच उन्नति होनी चाहिए। जे नहीं हो रही है मतलब वो बंदा सही नहीं गल कर रहा।
इसका मतलब वो सिर्फ फर्जी बातें कर रहे हैं। तुसी जाओगे ओ जी अज बड़ा आनंद आया, वो कन्नां नूं सुन के बहुत वधिया लग्या, पर काम की होया? काम कुछ नहीं होया जी, बस सुन के वधिया लगा। तो जिहड़े वधिया लगन वाला काम है ना, वो ऑलरेडी खराब ही है जी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी की है, क्या है? अज तुसी तलवार नू मान लो अपने पेट दे विच मार लो, अपने सीने दे विच मार लो, तो तुहानू कहेगी हाय बड़ा मजा आंदा पिया। होगा ऐसा? आप रोटी सब्जी बनाते समय, रोटी बनाते टाइम थोड़ा हाथ जल जाए तो तुसी कहोगे आए बड़ा मजा आंदा पिया, हाथ जल गया। ऐसे होता है? जो चीज आपको चोट पहुंचाएगी वो आपको खुशी नहीं देगी। वचन आपको सही चलाता है, ट्रेन करता है, इसीलिए वो आपको खुशी नहीं देगा, आपको ट्रेनिंग देगा। तो खुशी ढूंढने के लिए वचन में मत जाएं। तो जहां आपको खुशी मिलती है ना, हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आप मजे लेने नहीं आते चर्च में, आप ट्रेनिंग लेने आते हैं चर्च में, ताकि जब आपके सामने परमेश्वर आए आप उनके लिए तैयार पाए जाएं। हालेलुया। तो इसलिए वो क्या करता है, शैतान क्या करता है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजता है, झूठे टीचर्स को भेजता है। वो आके की करेंगे, कोई भी टीचिंग्स इधर दी उधर दी कहानी, उधर दी कहानी, उधर दी कहानी, वचन दी कोई कहानी नहीं। सावधान हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि भेड़ की खाल में भेड़िए भेजे जाएंगे। हर कोई जेड़ा परमेश्वर, हर कोई जेड़ा प्रभु प्रभु कहता, वो प्रभु दे स्वर्ग दे राज दे विच एंटर नहीं होएगा। बड़ी कड़वी बात लिखी है वचन में। जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का, उसके 21 से पढ़ना शुरू कर दे, वहां पर लिखा है हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। वचन दे विच लिखिया, ऐसे वचन जो तुसीं अगे पढ़दे हो लिखिया है, उस दिन बहुत सारे इदां दे होणगे जिहड़े कहणगे प्रभु असीं क्यों तुहाडे नाम दे विच दुष्ट आत्मावां नहीं कढियां, असीं तुहाडे नाम दे विच बीमार ठीक नहीं कीते, असीं तुहाडे नाम दे विच वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार नहीं कीते। देखिए परमेश्वर कहंदे है, अगे लिखिया है प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें जानता भी नहीं, हे दुष्कर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। सावधान हो जाएं परमेश्वर के लोगों। हर कोई जेड़ा प्रभु यीशु कहंदा वो प्रभु यीशु वालों नहीं है। वचन दे विच लिखिया है हर एक आत्मा नू परखो। की करन वास्ते लिखिया? परखने के लिए लिखा है। जिनियां लेडीज घर रोटी बनांदियां, हाँ जी, रोटी बनाने वाली जितनी भी औरतें घर में, अपने घर च रोटी मैं भी बनानी है, हाथ जरा खड़ा कर दो। तुहानू अपने आटे की पहचान होंदी है? आप जो आटा गूंथते हैं, जिस आटे की आप रोटियां बेलते हैं, आपको अपने आटे की पहचान होती है? अगर उस आटे में मिक्सिंग करके आए तो आपको पता चल जाएगा आटा सही नहीं है। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि आप उस आटे को गूंथने के, रोटियां बनाने के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर कुछ भी मिलावट होगी आपको दिखाई दे देगा। जो इंसान परमेश्वर की नजदीकी का इतना आदी हो चुका होता है, जो परमेश्वर के साथ चलने का इतना आदी हो चुका होता है कि जब उसके सामने कुछ नकली आएगा तो वो उसे पहचान जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं, उथे की करते कैशियर, जो तुसी उन्होंने नोट देंदे खट 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 करके वो एक जो नई नोट ठीक होंदा उन्होंने फोल्ड कर देंदे। देखा है आपने? मैंने तो नोटिस किया है। तो वो नोट काउंट करी जाएंगे और जो नोट ठीक नहीं होगा उसको फोल्ड करते जाएंगे, नोट काउंट करते फोल्ड करते जाएंगे और फिर वो नोट अलग कर देंगे। फिर आपको बोलेंगे ये जी ठीक नोट नहीं है, आप बोलोगे ये तो सही है, ये तो ठीक है, वो कहते नहीं जी ये नकली नोट है। आपको नकली और असली में फर्क दिखाई नहीं देगा, उनको दे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन असली नोटों का हिसाब किताब करते हैं, इसलिए जब नकली नोट आता है वो जान जाते हैं। तो जो परमेश्वर का जन सारा समय परमेश्वर के साथ समय बिताता है, जब उसके सामने नकली आएगा वो पहचान जाएगा कि ये परमेश्वर का जन नहीं है। क्या किसी को समझ आ रही है? और आज के जमाने में ज्यादातर लोग वो हैं जो भटकाए जा रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वचन में लिखा क्या है। जो तो पता ही नहीं लिखिया कि ये तो जो भी कोई कही जाएगा तो कहना हाँ लिखे ही होना, सानू की पता।
अगर आप खुद खाना नहीं खाते हैं तो जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ कि मैं किसी नाल गल कर रही हूं तो ये मत सोच लेना कि हर बंदा हर बंदी हर परमेश्वर का जन जो है जो प्रभु प्रभु करता है वो प्रभु का ही जन है जी नहीं आत्मा को परखे और जाने कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं अगर आप नहीं परखेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं आमीन तो ये है तीसरी बात धन्यवाद हो मेरे खुदा Thank you, Lord. चौथी बात हम सब सुनते हैं यहां पे कान है जी सबके कान है सबके बस थोड़े नहीं जवाब आ रहे हैं बाकी पता नहीं कहते कोई नहीं बाकी कह देना असी कानू कहना जिनके कान है वो बोले हाँ जी शुक्र है खुदा दा सारे दे कान है ओके तो अगर आपके कान हैं तो बार बार वचन क्यों कहता है जिसके कान है वो सुन ले इसका मतलब आपके स्वाभाविक कान यानी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ परमेश्वर का वचन कहते हैं जो कुछ भी तुम सुनते हो जान रखो क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो क्या सुनते हो तो समझ आ गई कि हाँ जी कुछ सुनते पे कैसे सुनते हो कितना सुनी तो कन्ना दे नाल ही तो सुनी दा भाई आप दिमाग से सुनते हैं नाक से सुनते हैं मुंह से सुनते हैं कहां से सुनते हैं कानों से सुनते परमेश्वर का वचन लिखा है कैसे सुनते हो पता क्यों लिखा है कैसे सुनते हो क्योंकि जो आप लगातार सुनते रहेंगे आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे वचन बताता है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से अब ये बात नेगेटिव भी काम करती है पॉजिटिव भी काम करती है यानी जो झूठ आप लगातार 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 सुनते रहेंगे आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे जो सच आप लगातार सुनते रहेंगे आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे इसलिए लिखा कैसे सुनते हो पड़ोसी से पूछे कैसे सुनते हो जोर नाल पूछो जरा और घर जाके जब आप लिखे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लूका रचित सुसमाचार 8 के 18 में ये बात लिखी है कि इस बात को चौकसी से सुनो चौकसी से देखो कि कैसे सुनते हो तो अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि पास्टर जी ठीक है कैसे सुनते हैं ये तो ठीक है सुनते सुनते तो ठीक है पर सुनना है कैसे आया दिमाग में ये क्वेश्चन हाँ जी नहीं सुना मुझे चौकसी से पर कैसे सुनना है चाय कितने लोगों ने बनाई है चाह कितने लोग बना लेंदे ने भरा भी बना लेंदे होने चाह तो इतनी बेसिक चीज है सारे बना लेंदे होने ऐ ना कहो नहीं जी मेरी तो वोटी बनाती मैं तो कभी बनाई नहीं चाह सब बना लेते हैं चाय तो जब आप चाय बना लेते हैं उसमें चाय पत्ती डालते हैं उसमें दूध डालते हैं उसमें चीनी डालते हैं उसमें पानी डालते हैं उसमें इलायचियां लूचियां पा देंदे हो तो जो चाह बन जाती है तो की करते हो कम ऑन क्या करते हैं आप शाबाश क्या करते हैं आप छानते हैं और कप में डालते हैं बिना छाने पी लेंगे जी चाह क्यों नहीं पींदे चाह क्योंकि वो तो सारी चीजें मुंह में आएंगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਨਨੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ जो जो चीज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छननी में से पार होती है सिर्फ वही सुनना है सिर्फ वही ग्रहण करना है सिर्फ उसी पर चलना है सिर्फ उसी को देखना है और जो पवित्र आत्मा की छननी में से पास नहीं होती उसको छोड़ देना है उन्होंने कहना मैं लेना ही नहीं है चीज अपनी लाइफ में रिसीव ही नहीं करनी
अगर कोई आपकी जिंदगी में गलत शब्दों को बोता है, अगर कोई आपकी जिंदगी में हर समय नकारात्मक सोच को बोता है, अगर आपकी जिंदगी में कोई बार बार आपसे घृणा के शब्दों को बोता है, अगर कोई बार बार आपके ऊपर नालिश करता है, अगर कोई आपके ऊपर बार बार तंज कसता है, तुसी की करना है? नहीं हाय उन्हें कहता मेरा मूड बड़ा ऑफ हो गया। तुसी कुछ नहीं कहना, तुसी कहना पवित्र आत्मा प्रभु दी हजूरी दे विच मैं इस चीज नूं रिजेक्ट करदा हां या करदी हां प्रभु यीशु दे नाम दे विच। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लोग आशीष के लिए रचे गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हुण तुहाडा क्वेश्चन यह होना चाहिए सीगा कि पवित्र आत्मा दी छननी नाल फिर क्यों छानी है? वचन दी छननी नाल क्यों ना छानी है? देखो जो प्रभु यीशु मसीह वापस जा रहे सी स्वर्गां दे विच ते उन्होंने कहा सी मैं एक ऐसा सहायक भेज रहा तुहाडे कोल जिहड़ा तुहानूं उन्हां सारियां गल्लां नूं याद दिवाएगा जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल कीतियां, और वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। कई बारी तुहानूं नहीं याद रहना किहड़ा वचन कित्थे लिखिया सी, पर पवित्र आत्मा तुहानूं याद दिवावेगा कि किहड़ा वचन कित्थे लिखिया सी। कई बार तुसी ये कह सकते हो पास्टर नीतू हमें याद नहीं रहते कौन से वचन कहाँ लिखे हैं, कौन सा वचन कहाँ पर बोलना है, कौन से वचन की कौन सी रेफरेंस है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ था शैतान के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था हाँ फलाने चैप्टर की फलानी आयत में ये लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज का सामना सिर्फ ये कहकर कहा था लिखा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो लिखा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ चुके हैं जो लिखा है, आप सुन चुके हैं जो लिखा है। पड़ोसी को एक तरफ देखें और कहें लिखा है, जोर से बोले लिखा है। और लिखा क्या है? बोलो लिखा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आज मैं इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति में ये कहती हूं कि अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका कोई भी ऐसा केस है जहां पर आप कोर्ट कचहरियों में घड़ीस कर ले जाए गए हैं, कम ऑन खड़े हो जाए अपनी जगह पर। अगर आपका कोर्ट का कोई केस चल रहा है तो ओ खबराही इब्न हबरुआंदा या हकीले के इजहा विल्त की बिना कहा जमियांगा अंदर रूहुआ कलकी शह ए ना हम रखी बेतना हबरुआ लके ना कजहा। मैं इस बात को एक जन जो इस समय खड़े हुए हैं और जिनका कोर्ट केस चल रहा है, आपकी जिंदगी में इस वचन को, इस वायदे को रिलीज करती हूं कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस बात को भी रिलीज करती हूं कि जितने आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके खिलाफ गवाही देने के लिए या आपके खिलाफ विटनेस के रूप में, वो सब शर्मिंदा किए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। अपनी गवाहियां दे नाल वापस आना जी प्रभु यीशु दे नाम दे विच। Come on, come on, come on. People of God, this is your time. Come on. I need somebody who can play some instrument. कोई भी आ जाओ बेटा। Thank you so much. परमेश्वर थोड़े हाथों में बड़ी बरकत दे। हो बिना यांदा या वाला ते यांदा सहो तोला या हे बितेरो यहोवा। एक और, आप बैठ सकते प्लीज, सब आप बैठ सकते परमेश्वर की उपस्थिति में। एक और जाल है जिहड़ा शैतान इस्तेमाल करदा परमेश्वर दे लोकां दे खिलाफ, ते ओह लालच दा जाल। वचन दे विच बार-बार चिंता ना करन दे बारे च गल कीती गई है। चिंता आपां कदों करना है? जदों सानूं लगदा साडे कोल है नहींगा, अच्छा कल दे दिन की होवेगा। आज की चिंता कम होती, कल की ज्यादा होती है। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? कल की करांगे, कल की करांगे। परमेश्वर कहते कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज की चिंता ही काफी है। तो जब आप चिंता के साथ लालच करते हैं, यार इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान की उस
खुशफुसाहट को जो आपके कानों में करता है, उसको रास्ता दे रहे हैं और आप उसके ही रास्ते पर चल जाते हैं। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। सो इसलिए जब आपके मन में ग्रीड आए, जब आपके मन में लालच आए, तो समझ जाइएगा कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान ने आपको फंसाने के लिए किया है। आमीन। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते ना, जो किसी बंदे ने थोड़ा ना बहुत माड़ी की थी, देखिए माफ करना मैं ये नहीं कह रही आसान होता है, वो बिल्कुल नहीं आसान होता। हर बंदे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस सिचुएशन में से निकलना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी माफ कर दो, कोई गल नहीं जी माफ कर दो। माफ करना बड़ा औखा होता है, आई नो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता। पर जब कभी आपकी जिंदगी में माफी ना देने की फीलिंग हो ना, तो समझ जाइएगा कि अभी आप परमेश्वर के पूरी तरह से नहीं हो पाए। ये एक ऐसा शिकंजा है जो शैतान इतनी बखूबी इस्तेमाल करता है आज भी, अब भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। एक मिनट वास्ते अपनी अखां बंद करांगे तो सोचांगे जे थोड़ी लाइफ दे विच कोई अजिहा बंदा जिदे वास्ते थोड़े दिल दे विच कड़वाहट है, थोड़ा जी नहीं करता उस बंदे दी शक्ल देखण नूं, जे तुहाडे सामने आ जावे तुसीं कहोगे दफा कर दो इहनूं इत्थों। अगर कोई ऐसा इंसान है, इसका मतलब आज तक आप उसको माफ नहीं कर सके हैं। सोच के देखो जरा, सोच के देखो जरा, यह जिहा बंदा कोई जिहदी शक्ल तो भी तुहानूं नफरत है, जो तुहाडे सामने आ जाए तुसीं बुलाओ भी ना उहनूं। अखां खोल लो जी प्लीज। हुण थोड़े जी ईमानदारी नाल, वफादारी नाल गल दसनी है। शर्माना नहीं, गवांढी की कहेंगे, नाल बैठी भैन की कहेगी, भरा की कहेगा, ये नहीं सोचना आपने इस टाइम पे। पर अगर आज आप इससे निजात चाहते हैं, अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं, आज हम बात करें इंडिपेंडेंस की। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी आई है, जब आपने आंखें बंद की हैं, तो क्या आप अपना हाथ उठा के बता सकते हैं कि मैं हूं? शाबाश, कम ऑन। वफादार हो जाएंगे परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ। बाकी सारे एंजल्स बैठे थे, है ना, स्वर्गदूत बैठे। सिस्टर जी अपनी तो कलीसिया बहुत वधिया, सारे स्वर्गदूत इत्थे तो तैयारी की लोड़ ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश। ऊंचा करे हाथ, कोई बात नहीं, आप पे कोई इल्जाम नहीं है। शाबाश। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आज आपको आजाद करना है, और हम यहां पर आजादी के लिए आए हैं। मैं तभी आपको कह रही हूं, वचन सुन के जाके यानी बड़ा मजा आया, मजे लैन नहीं आप आए, आप अपनी जिंदगी बदलन वास्ते आए हैं परमेश्वर दे वचन दे नाल। तो अब जो भी बंदा या जो भी बंदी आपकी माइंड में आई है ना, दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करें और कहें, प्रभु मेरा मन तो नहीं कर रहा मैं उसे माफ करूं, पर आपका वचन मेरे पास पहुंचा और मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं, उस बंदे से ज्यादा नफरत नहीं करता हूं। यानी मेरा प्यार आपके लिए उससे बढ़कर है जितनी नफरत मैं उस बंदे से करता हूं। और प्रभु क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए आज मैं उस बंदे को माफ करता हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, माफ कर दे आज उसे। जो भी बंदा, जो भी बंदी है, उसे आज माफ कर दे। कम ऑन पीपल, कम ऑन कम ऑन, कमलीसिया, इस समय उन्हें माफ कर दे। बस बजाते रहे, दिल से माफ कर दे, माफ कर दे। शाबाश, माफ कर दे। बोले प्रभु मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर मैनू थोड़े फजल दी लोड़ है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, पर थोड़ा फजल मेरे उत्ते उतर आए ऐसे वेले। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रभु जी थोड़ा फजल थोड़े लोकां दे उत्ते उतरे ऐसे वेले, प्रभु यीशु दे नाम दे विच। Yes, my Abba, let your grace flow upon your people right now in the name of Yeshua. And as you flow upon them, Master, as you flow upon them, Master, come on, let they be receiving something that they have never received before. प्रभु जेड़ा उन्होंने कदे पहला रिसीव नहीं किया, परमेश्वर वो अनुग्रह, वो दात थोड़े को रिसीव करन, जिदे नाल वो अपने दुश्मनां नूं माफ कर सकन।
कम ऑन, माफ कर दे, माफ कर दे, कम ऑन, माफ कर दे। इस समय मुंह से बोले मैं माफ करता हूं, मुंह से बोले बेटा, मुंह से बोले मैं माफ करता हूं, मैं माफ करती हूं। शाबाश, मुंह से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, ताकि शैतान जो है वो शर्मिंदा हो जाए। कम ऑन बोले मैं माफ करता हूं प्रभु में होकर। प्रभु जी, जबकि आपके लोगों ने अपनी माफी को रिलीज किया है, होने दे खुदावंद आपका ग्रेस, आपका प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम मेरे परमेश्वर उनके पिता, कि प्रभु आपका आनंद उनकी जिंदगी में भरपूर हो जाए। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए। कम ऑन। इस कलीसिया की वर्शिप टीम के कोई बच्चे हैं आगे? जीवन मिलिया, आशीष ठहरी, और इस टाइम पे विश्वास करें, इस टाइम पे विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे पर्सनली भी बात करेंगे, आपके लिए भविष्यवाणी भी होगी। जैसे जैसे मुझे परमेश्वर अलाउ करेंगे, जैसे जैसे चलाएंगे, मैं आपके लिए रिलीज करूंगी। हालेलुया। पर अपने मन को पूरी तरह से इस समय परमेश्वर के सामने लेकर आ जाए। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूं, परमेश्वर मुखौटों को नहीं देखते, परमेश्वर मुखौटों के पीछे की असलियत को देखते हैं। कम ऑन। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। सिस्टर जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया। रेड दुपट्टे वाले सिस्टर, आपके घर की कोई ऐसी परेशानी है जिसको आप लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप में जूझते जाते हैं। जब मैं आपकी शक्ल की तरफ देख रही थी तो मैंने पाया एक ऐसा दिल जो कंप्लेन नहीं करता परमेश्वर के सामने, लेकिन विश्वास करता है। क्योंकि आप विश्वास करती आई हैं और आपने परमेश्वर के सामने कंप्लेन नहीं की, आज से दिन गिनना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी परेशानी का हल निकल चुका है स्वर्ग से प्रभु यीशु के नाम में। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। बंधन टूट गए, टूट गए, गांभी मुक गए, मुक गए, अथरू सुख गए, सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए, टूट गए, गांभी मुक गए, मुक गए, अथरू सुख गए, सुख गए खुदा। जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। आज इस जगह पर खास तौर से वॉलंटियर्स जिनका कोई पैसे नहीं मिल रहे इस जगह पर काम करने के लिए, जब उस टाइम पे मैं यहाँ बैठी थी मुझे आवाज आई मन में एक, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग आज की सभा के लिए कोई पैसों की वजह से काम नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की महिमा को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आज की डेट नोट कर लें, आपको परमेश्वर 100 गुना अजर देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपके पास रखने के लिए
उन आशीषों को जगह कम पड़ जाएगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आपके लिए जगह रखने के लिए कम पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आशीषें नहीं रुकेंगी प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। कम ऑन। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हाथों का काम करते, कारीगरी का या कोई भी ऐसा स्किल का काम, बुनाई, सिलाई, मैकेनिकी, कोई भी हाथों का काम, कौन कौन लोग हैं जो हाथों का काम करते हैं यहाँ पे? शाबाश। जिन्हों का काम हत्थों का काम है, वो नहीं दिमाग वाला काम नहीं कि जी दिमाग दफ्तर च बह गए एसी वाले कमरे च, वो वाले नहीं, हत्थों वाला काम। कम ऑन, अपने हाथों को ऊंचा करें। इस समय मैं आपके हाथों में परमेश्वर की आशीष को रिलीज करने जा रही हूं। अब से आप जो काम करेंगे उसका आपको दुगना प्रॉफिट मिलेगा प्रभु यीशु के नाम में। और ये नहीं है कि वो प्रॉफिट लेके तुसी घर बह जाना, तुसी कहना हाँ जी ये तो मेरा प्रॉफिट है। वो जो परमेश्वर का हिस्सा जरूर कढ़ना है प्रभु यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। अपने हत्थां नूं वेखो ते कहो परमेश्वर, नहीं बेटा जेड़े हत्थां दे काम करदे ने, जेड़े स्किल दा काम करदे ने, जेड़े लोग हत्थां दे काम नाल अपनी रोजी रोटी कमांदे ने, सिर्फ वो अपने हत्थां नूं ऊंचा करिया इस वेले और अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाते हुए बोले, प्रभु जी ये हाथ मेरे नहीं थोड़े बन जाण। प्रभु मेरे हत्थां नूं बरकत दिओ, प्रभु मेरे हत्थां नूं बरकत दिओ, मेरे हत्थां नाल कीते होए काम नूं बरकत दिओ, तां जो मैं तुहाडी महिमा होर भी उचेचे तरीके नाल कर सकां प्रभु यीशु दे नाम दे विच। आमीन। आज आप जो भी आपके ऊपर बात की जा रही है, जिहड़ियां भविखवाणियां प्रोफेसियां तुहाडे उत्ते हो रही हैं, उन्हां नूं घर जाके लिख लेना। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये पूरी होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन। भाई आप जो मैरून शर्ट में हैं, जिन्होंने हाथ ऊंचे किए हुए हैं, मैरून शर्ट, हाँ जी, परमेश्वर आपके घर में से किसी को अपनी सेवा के लिए खड़ा करना जा रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ परमेश्वर किसी अजिहे बंदे नूं, जवान बंदे नूं अपनी महिमा वास्ते, अपनी सेवा वास्ते खड़े करन जा रहे हैं। हाले मैं देख रही हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ इदां दा कोई बच्चा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई नहीं दे रहा, पर ਤੁਹਾਡੇ मन च आ रहा ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ कोई अजिहा है नहींगा, पर परमेश्वर उसनूं उदां ही मोड़ के लियाणगे जिद्दां उड़ाऊ पुੱਤਰ ਨੂੰ मोड़ के लिआंदा सी, ते परमेश्वर उसनूं अपनी महिमा दे वास्ते इस्तेमाल करनगे प्रभु यीशु दे जिउंदे नाम दे विच। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी। रूहान टीवी वाले भाई, आप हैं ओनर बेटा? मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक और काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप हाथ डालना चाहते हैं। आप एक काम है जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं शुरू कर दूं, पर वो काम ऐसा हो नहीं रहा है और आपके वो कहते ना पासे सीधे नहीं पै रहे। आज तो सीधे पैन जा रहे हैं प्रभु यीशु दे नाम दे विच। अपनी गवाही नूं जरूर साडे नाल शेयर करना, क्योंकि तुहाडा काम खुलन जा रहे हैं प्रभु यीशु दे नाम दे विच। अथरू बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी
आई। बेटा जब मैं आपको देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप जहां जहां जा रहे हैं आपके आगे रास्ते तैयार होते जा रहे हैं। नॉट दैट मैं आपसे पहले मिली हूं, पर मुझे अभी जो परमेश्वर की ओर से महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके लिए आगे का रास्ता जहां आप जा रहे हैं वो एफर्टलेस होने वाला है। आपके लिए परमेश्वर रास्तों को तैयार करेंगे। काफी ऐसी चीजें जो बहुत दिक्कत और परेशानी वाली है, लेकिन वो परेशानियां आपको छूने नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके आगे आगे होकर परमेश्वर चलेंगे। और जब परमेश्वर चलेंगे तो रास्ते तैयार होते जाएंगे, और जब रास्ते तैयार हो जाएंगे यू जस्ट हैव टू मूव। लेकिन परमेश्वर दी महिमा करनी नहीं छड़नी, परमेश्वर दी उस्तत करनी नहीं छड़नी। प्रभु यीशु दे नाम दे विच हालेलुया। इस समय ऐसे लोग जो किसी भी शरीर की बीमारी की वजह से परेशान है, वो अपने हाथ खड़े कर लें। आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, ओके जेड़े अगे खड़े ओ ना आओ, जेड़े बिल्कुल पीछे खड़े ओ अगे आ जाओ। जो बिल्कुल पीछे खड़े, जो बिल्कुल पीछे खड़े वो लोग आगे आ जाए। जेड़े अगे खड़े हो अगे खड़े रहो, कोई गल नहीं। आजो आजो बेटा, थोड़ा जल्दी आओ, अगे लाइन च आजो। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। वॉलंटियर्स लोगों को जरा जल्दी से लाइंस में खड़े करवा दें। कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी अखां नूं बंद करो। जिथे तुहाडे प्रॉब्लम है उस जगह ते अपने हाथ नूं रख सकते हो। जे एक तो ज्यादा प्रॉब्लम है अपने सिर ते हाथ रख सकते हो। जे एक तो ज्यादा प्रॉब्लम है तुहाडी बॉडी दे विच, तुसी भी बाकी लोग भी जिहड़े पिछे खड़े ने, बस होर छड़ दो, हुण ना अगे आओ। बस जिथे हैगे उत्थे ही खड़े हो जाओ, जिथे हो उत्थे ही खड़े हो जाओ। जिस जगह दे विच तुहाडे शरीर दे विच तकलीफ, बीमारी, परेशानी, सिकनेस है, उत्थे तुसी हाथ रखो। जे एक तो ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर ते हाथ रख लो। कम ऑन, दिस इज योर टाइम। डियर होली स्पिरिट, प्लीज मूव इन दिस प्लेस वंस अगेन। पवित्र आत्मा प्रभु एक बारी फिर तो मेरे खुदावन इस जगह दे विच मूव करो। मेरे परमेश्वर, इस पंडाल दे शुरू तो लेके अंत तक मेरे खुदावन दा, अंत तक मेरे परमेश्वर, अंत तक मेरे खुदावन इस कैंपस दे विच जिन्ने भी लोग जिहड़े बीमार ने, जिन्हां ने इस वेले ईमान रखिया मेरे खुदाया, ते अपने हत्थां नूं उस जगह ते रखिया जिथे प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा प्रभु, यस, राइट नाउ यू टच देम अबा। टच करो मेरे खुदावंदा, छू लो। आपके आसपास लोग गिरेंगे, आप पकड़ लीजिएगा उनको। तो इर्द गिर्द जो लोग गिरते हैं उन्होंने फड़ लेना इस वेले। कम ऑन बेटा, जस्ट कीप प्लेइंग दिस। Come on, come on, come on, come on. Right now, right now, right now, right now. Dear Holy Spirit, touch your people in this place, Abba. बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कोई नहीं, फड़ लो जो थोड़े आसपास लोग गिर रहे हैं। बीमारी दी दुष्ट आत्मावां प्रभु यीशु दे नाम दे विच छड्डन। Come on, come on, come on. छड्डो प्रभु यीशु दे नाम दे विच। ध्यान से जो लोग आपके आसपास गिर रहे हैं उन्हें पकड़ ले। Come on. बीमारी दी दुष्ट आत्मावां out in the name of Yeshua. Out in the name of Jesus. ओ देखो, वो दुष्ट आत्मावां निकल दिया भैया। वॉलंटियर संभालो, वॉलंटियर संभाले लोगों को। Come on. निकल दे। Come on, निकल दे अपनी बीमारियों को, निकल दे दुष्ट आत्मा को, निकल दे। आपके आसपास भैणा नु संभालन, भरा नु संभालन, बहनों को संभाले, भाइयों को संभाले। कम ऑन।
आपके आसपास बहुत सारे लोग गिर रहे हैं क्योंकि इस समय परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूकर काम कर रहा है। वो देखिए पीछे भी गिर रहे हैं लोग। कम ऑन, आपके आसपास के लोगों को संभालें, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। संभालें अगर आपके आसपास कोई भी गिर रहे हैं तो। जी मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, यस यस अबा, यस अबा, यस अबा, यस यस अबा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस मास्टर, यस मास्टर, यस यस यस। चल 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 चल, छड़ 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 छड़, शट अप, गेट आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बस। थैंक यू मास्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब्बा जी। शुक्र है मेरे खुदावंदा, शुक्र है शुक्र है शुक्र है मेरे परमेश्वर, शुक्र है मेरे खुदावंदा। सारी ढिठाई की आत्माएं जो इन शरीरों को नहीं छोड़ रही है, कम ऑन, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ध्यान से पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। ऐसी ढीठ दुष्ट आत्माएं जो बीमारी को लेकर बैठी हुई हैं सालों से, मैं इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर तुम्हें गेट आउट होने का इन शरीरों से हुक्म देती हूं। छाड़ दो छाड़ दो छाड़ दो। ध्यान ना पकड़ो यार, बच्चे जेड़े गिर रहे हैं भैना उन्होंने पकड़ लैन, जे भरा गिर रहे ने भरा पकड़ लैन। ओ धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। और इस समय वो दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं जो बीमारी फैलाती थी। अब आपकी चंगाई आपको छूने जा रही है, अब आपकी चंगाई आपको छूने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, मैं 3 गिनूंगी और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हजूरी में होकर आप में प्रभु के चंगाई को रिलीज करूंगी। मैं एक बार आपको ध्यान से बता दूं, चंगाई देने वाली नीतू पी चौधरी नहीं है, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, कोई भी इंसान परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता, और यहां पर भी कोई भी इंसान परमेश्वर की जगह ना लेने पाए। इस समय अपने आप को परमेश्वर के सामने नमन कर दे और बोले, परमेश्वर मुझे आपकी चंगाई की जरूरत है। कम ऑन बेटा, आपको ये अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, ये आपको खुद बोलना पड़ेगा। बोलो, प्रभु मैंने थोड़ी चंगाई दी लोड़ है। कम ऑन, एट द काउंट ऑफ 1 प्रभु यीशु मसीह दे जिਉਂਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ। 2 ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਬੋਲਾਂਗੀ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗੀ प्रभु ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ प्रभु यीशु मसीह दे जिਉਂਦੇ नाम दे विच। 3 come on, receive your healing right now, 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 receive your healing right now. Come on come on come on, I release it in the name of Yeshua. प्रभु जी पिछे तक, पंडाल दे पिछे तक मेरे खुदावन, पंडाल दे एंड तक मेरे खुदावन थोड़ी चंगियाई थोड़े लोगों को छू ले इस वेले प्रभु यीशु दे नाम दे विच। सारी बीमारी, शरीर दी तकलीफ, परेशानी प्रभु यीशु दे नाम दे विच इन्हां शरीरां नूं छड्ड के थोड़ी चंगियाई दे नाल उस जगह नूं भर देवे मेरे खुदावन। प्रभु यीशु दे नाम दे विच, प्रभु यीशु दे नाम दे विच। मैं इस टाइम ते दिमाग दियां प्रॉब्लम्स नूं ठीक होंदे होए देख रही हां प्रभु यीशु दे नाम दे विच। Oh, I feel it in spirit in this place. मैं इस जगह दे विच परमेश्वर दे पवित्र आत्मा दी हजूरी दे विच महसूस कर रही हां दिमाग दियां नसां तरोताजा हो रही ने। डिप्रेशन प्रभु यीशु दे नाम दे विच छड्ड के जा रहे ने। मेंटल इंस्टेबिलिटी प्रभु यीशु दे नाम दे विच जा चुकी है जी। ओ थैंक यू लॉर्ड। ते इत्थे कुछ लोग ने जिन्हां दे घर दे लोग मेंटली अनस्टेबल ने, तुसी इस वेले उन्हां दे लई भी प्रभु दी चंगियाई नूं रिसीव करो। तुसी घर जाओ ते उन्हां नूं इह गल कहो कि मैं प्रभु यीशु दे नाम दे विच विश्वास करदा होया आया हां, आई हां ते मैं तुहाडी चंगियाई नूं बोलदा हां प्रभु यीशु दे नाम दे विच। कम ऑन। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। मैं महसूस कर रही हूं इस जगह दे विच कुछ अजिहियां मावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने मुंडियां दे व्यवहार नूं लेके बड़ियां परेशान ने। ओ कुछ ऐसे बेटे ने जिहड़े कि नशियां दी आदत दे विच भी फस चुके ने
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਜ਼ ਆਈ ਸਪੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਛੂਏ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਛੂਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏ, ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆਈ ਏ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆਈ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿਸਟਰ ਊਸ਼ਾ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਂਟਾ ਚੁਕਵਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮ ਔਨ ਕਮ ਔਨ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆਈ ਏ ਖੁਦਾ। अपनी भेंटा ਨੂੰ अपने हाथ च ले लो, अपनी भेंटों को अपने हाथ में ले ले। जिन्होंने लोगों ने जेडे अगे आए हुए पीछे जाके अपने भेंटा नु लो जी, जल्दी जल्दी कम ऑन। देखो जेड़ा काम जिस टाइम ते होना हुंदा ना उस टाइम ते होना हुंदा। सिस्टर सरब मेरा पर्स पकड़ाना, कम ऑन जल्दी। टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। अपनी भेंट को अपने हाथ में ले, सज्जे हाथ में अपनी भेंट ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਕਮ ਔਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ पैसे ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। पर जब मैं करती हूँ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है आत्मा में, और जो बात मुझे आत्मा में महसूस होती है वो गलत नहीं होती है। हालेलुया। अपनी भेंट को पकड़ेंगे और कहेंगे परमेश्वर ए मेरा वो बीज है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। देखो खुश हो गए परमेश्वर दे राज दे विच दिओ, परमेश्वर भी खुश हो के ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਰੋ ਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਕਮ ਔਨ, ਥੋੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਮ ਔਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ परमेश्वर ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
प्रभु यीशु दे नाम दे विच ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਐ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ आइए इस समय अंतिम प्रार्थना में जो वचन के बाद की अंतिम प्रार्थना है उसमें चलते हैं। 1 मिनट लिए अपने अखां नूं बंद कर लांगे। प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज इस जगह पर प्रभु अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार जो जो काम आपने किए उसके लिए हम आपको सारी महिमा देते हैं। प्रभु आपने हर एक के कामों को देखा है, हर एक की मेहनत को देखा है, हर एक के एफर्ट्स को देखा है और आप किसी भी इंसान के कर्जदार नहीं हैं। प्रभु आज जिसने अपने तन मन और धन के साथ इस जगह पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को दिया है, आपने उन्हें देखा, आपने उन्हें जाना, आपने उन्हें जांचा, अपने स्वर्ग राज्य के बड़े खजाने से प्रभु 100 गुना करके उनकी जिंदगियों में लौटाए। मेरे राजा मैं प्रार्थना करती हूं कि आज आपके लोग इस जगह पर से अपनी आत्मिक और आशीष जो आर्थिक हैं उन्हें और जो शारीरिक हैं उन्हें पाते हुए इस जगह से वापस जाएं। जो भविष्यवाणियां की गई हैं, जो प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस किए गए हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सबों पर आपका पवित्र लहू का बाड़ा लग जाए। जो आशीष रिलीज की गई हैं, जो चंगाइयां लोगों ने आज पाई हैं, प्रभु उन सबों को प्रभु हम आप में सुरक्षित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान की कोई भी योजना ना तो इस वचन को ना ही इन आशीषों में से एक भी किसी अंश को चुराने पा सके। धन्यवाद देते हैं, सारे बातों में आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं, तो आवाज ही नहीं आई, शुक्र है प्रभु का, आमीन।